Hello students, today we are going to start the topic computer network which is related to class 12th of computer science. Okay, through this video you never forget the networking concept. चलिए start करते हैं. First, what is network? Network क्या है? Network, a computer network is a collection of interconnected computers and other devices to share data and other resources. Or we can say that when several computers are connected together by cable, this make a network. Through this diagram you can see in this there are different computers and only one printer and one scanner. Okay, so different computers connected to each other and different devices like printer and scanner, and these devices are also connected to the network, and these are called resources. Okay, so when number of computers or collection of computers interconnected each other with the other devices, for which purpose? To share the data and other resources, this will called a network. Okay, so let's see what are the advantage and what are the disadvantages of the network. So students, advantages क्या है इसके? First advantage I will tell you, share resources. Share resources means कि you can share the devices. As I told you earlier कि in a network you can share the resources also. Resources मतलब कि you can share the printer and you can share the scanner. It means for a big network, or if in a network there are 20 computers or 40 computers, so there is no need to purchase 20 printers and 20 scanner. So through sharing resources you can save the money. Okay, so sharing devices means like printer, it saves the money. Okay, next advantage is share files. शेयर फाइल्स मीन्स फाइल जो हैं आपकी वो क्या होंगी, डिफरेंट यूजर्स के बीच में क्या होंगी, एक्सचेंज होंगी. तो एक्सचेंज होने के लिए हमने क्या किया, फाइल्स को एक जगह पर स्टोर कर दिया, और वो फाइल्स इजीली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर क्या की जा सकती हैं, शेयर की जा सकती हैं. लाइक okay, so file can easily be shared between users. Fast communication is the other advantage, means कि in a network user can communicate by email and instant messengers. Okay, means कि through chatting, through email you can easily communicate or you can instantly communicate with the users. Okay, next advantage, share storage. Share storage means कि data is easy to back up as all the data is stored on the file server. So whatever the data you are creating in your network, so all the data store on the server, and through server you can access anytime anywhere in the network. Okay, next advantage is flexible access. Flexible access means in a network there is no foundation कि if you start one project at one system so you have to complete that project on that system only. No, there is no need. In a network it allow users to access file from computer throughout the network. So multiple users can also collaborate on the same project through the network. So students, these are the advantages. And next we are going to share with you disadvantages. So what are the disadvantages? Disadvantages, first disadvantage है expensive setup. Expensive setup means कि आपने क्या करा, जब नेटवर्क एक एस्टेब्लिश किया, तो नेटवर्क एस्टेब्लिश करेंगे तो वहां पर आपको एक सर्वर भी चाहिए होगा और कुछ केबल्स भी चाहिए होंगे. तो परचेजिंग द नेटवर्क केबलिंग एंड फाइल सर्वर, ये क्या बना देते हैं, सेटअप को एक्सपेंसिव कर देते हैं. केबल अगर आपने चूज करी ऑप्टिकल फाइबर केबल चूज करी, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है मोस्ट एक्सपेंसिव केबल है ना. तो यहां से आपको सर्वर का भी सेटअप करना है और केबलिंग का भी जो आपको जो भी चार्जेस होंगे, जो केबल्स लगाने के जो भी एक्सपेंस होंगे वो सब बेयर करने पड़ेंगे. तो एक्सपेंसिव सेटअप बैठता है इफ यू विल मेक अ नेटवर्क. ओके, next is systems are more complex. Systems are more complex means managing a large network is complicated. Means कि in a network there are number of computers and definitely some technical issue also raised when you establish a big network. So for solve these types of issue you have to appoint one person, one technical person for this,
who will handle these all types of issues. So managing a large network is complicated. It requires training and a network manager usually needs to be employed. Okay, so next disadvantage is unsecure. Unsecure means कि there is a danger of hacking particularly with wide area network. बिकॉज जो सिक्योरिटी प्रोसीजर्स होते हैं उसमें आपको क्या ज़रूरत होगी, आपको अब्यूजिव टाइप डेटा आपका नहीं आए या इस तरह के अब्यूज से आपको बचना है तो यू नीड अ फायरवॉल. ओके, सो देयर इज अ डेंजर ऑफ हैकिंग कि कोई भी आपका डेटा बीच में से ही नेटवर्क के बीच में अगर कुछ भी आपका पैकेट लॉस्ट हो गया, डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा, तो क्या होगा कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है. तो इसलिए कुछ सिक्योरिटी भी जरूरी होती है, जैसे कि फायरवॉल वगैरह आपके नेटवर्क पर होना चाहिए, सो दैट कि कोई भी जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए या आपके नेटवर्क में एंटर नहीं मिले, एंट्री उसको नहीं मिले. ओके, देन है फिर उसका डिसएडवांटेज कि रैपिड स्प्रेड ऑफ कंप्यूटर वायरस. रैपिड स्प्रेड ऑफ कंप्यूटर वायरस मीन्स कि वायरस जो होता है वो स्प्रेड हो जाएगा अदर कंप्यूटर्स में थ्रू आउट अ कंप्यूटर नेटवर्क. हाउ? वायरस नीड अ होस्ट एंड इफ एनी फाइल you will run in a other computers which is infected by the virus, तो इट मीन्स कि जो वायरस है वो पूरे नेटवर्क पर क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, जो कि आपके नेटवर्क को क्या कर देगा, स्लो कर देगा, हैंग कर देगा और आपका जो नेटवर्क है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द नेटवर्क. ओके, लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट टर्म कि कैसे इंटरनेट आया. व्हाट इज द इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्क. तो इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्क में जो इंटरनेट है वो इवॉल्व हुआ है किस टर्म से, ARPANET से. व्हाट इज ARPANET? ARPANEट इज Advanced Research Project Agency Network. Many times in the CBSE exam, CBSE board exam, many times ask the full form of ARPANET. So students remember one thing, ARPANET stands for Advanced Research Project Agency Network. Okay, और ये जो आपका ARPANET था, ये ARPANET जो रिसर्च था ये किसने स्पॉन्सर्ड किया था? इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. और जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहाँ का? यूएस का. तो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इस नेटवर्क को स्पॉन्सर्ड किया था. कब स्पॉन्सर्ड किया था? 1969 में. तो जो फर्स्ट नेटवर्क था दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ओके, तो वो कब आया? वो 1969 में आया एंड द नेम ऑफ द नेटवर्क इज ARPANET. ओके, एंड दिस became the basis for the internet. अब ARPANET में आपका क्या था कि जो ARPANET में आपका काम हो रहा था वो एक केवल उसी में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में ही खाली यूज हो रहा था. फिर 1980 में एकेडमिक पर्पस के लिए, एकेडमिक रिसर्च के लिए नेटवर्क को यूज किया गया. तो NSF नेट 1980 में आया. NSF नेट मीन्स नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क. तो नेटवर्क विच वाज मोर कैपेबल देन ARPANET था. ये NSF नेट जो था ज्यादा कैपेबल था ARPANET से, और इसका मेन एम था कि ये नेटवर्क को यूज कर सके किसके लिए? एकेडमिक रिसर्च के लिए. आफ्टर दैट ARPANET प्लस NSF नेट और फिर अदर प्राइवेट नेटवर्क जब क्लब हो गए और उनमें आपस में इंटर नेटवर्किंग हो गई तो इंटरनेट आया. कब? 1990 में. तो इंटर नेटवर्किंग किसकी? ARPANET की, NSF नेट की एंड अदर प्राइवेट नेटवर्क्स बिकम अ इंटरनेट. सो थ्रू दिस इक्वेशन यू कैन सी ARPANET प्लस NSF नेट प्लस प्राइवेट नेटवर्क इज इक्वल्स टू इंटरनेट. ओके, सो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जो है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, और वी कैन से इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, or it is the best example of WAN, wide area network. Okay, and it is not owned by anybody. इंटरनेट किससे इवॉल्व हुआ है? ARPANET से इवॉल्व हुआ है. और इसमें जो आपके नेटवर्क सिस्टम कनेक्टेड होते हैं वो इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, जो डेटा वो किसके थ्रू करते हैं? किस प्रोटोकॉल से? TCP/IP. TCP/IP इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल. थ्रू दिस यू कैन एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन. ओके, तो ये क्या करता है? इट अलाउज कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, और इसको क्या बोला गया है? इंटरनेट. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टर्म वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू, इंटरस्पेस. सो इंटरस्पेस भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्पेस. तो स्टूडेंट्स, इंटरस्पेस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि अलाउ करता है मल्टीपल यूजर्स को
एक कौन से एनवायरनमेंट में, क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में कम्युनिकेट विद ईच अदर। ओके, तो जो क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में जब मल्टीपल यूजर्स कम्युनिकेट कर पाएंगे, दे कैन ऑल्सो सेंड एंड रिसीव डेटा ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक डेटा फाइल्स, वीडियो, ऑडियो एंड टेक्सचुअल डेटा इन अ डायनामिक 3D एनवायरनमेंट्स, और वी कैन से दैट दिस इज द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट टुडे। सो इंटरनेट आपको समझ में आ गया कि इंटरनेट क्या था, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स था। इंटरस्पेस क्या है, इंटरस्पेस एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि मल्टीपल यूजर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस एनवायरनमेंट में, क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में, है ना। क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में कम्युनिकेट कर सकते हैं और सेंड और रिसीव कर सकते हैं डेटा ऑफ वेरियस टाइप लाइक डेटा फाइल्स, वीडियो, ऑडियो और टेक्सचुअल डेटा इन अ डायनामिक 3D एनवायरनमेंट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरस्पेस, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आपको ध्यान रखने की, दिस इज द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो कि अवेलेबल है इंटरनेट में आजकल के टाइम में। ओके, सो आई होप कि आपको ये सब टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। ओके, थैंक यू। एंड इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।